बुलेटिन का आगाज करेंगे। फितनाल खवारिज का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला, 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शहीद जवानों में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवालदार सोहराब खान, हवालदार मियाँ यूसुफ शामिल। नायक खताब शाह, लांस नायक इस्माइल और सिपाही रुहेल बेबी शहीद होने वालों में शामिल हैं। सिपाही मोहम्मद रमजान, सिपाही नवाब, सिपाही जुबैर अहमद, सिपाही मोहम्मद सखी भी शहीद होने वालों में शामिल। सिपाही हाशिम अब्बासी, सिपाही मुदस्सिर एजाज, सिपाही मंजर अली भी जामे शहादत नोश कर गए। अफसोसनाक और सफाक वाक़े में 2 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत की। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेज के गैर मुतसलसल हौसले और अज़्म को सराहा। कहते हैं पाकिस्तान की अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मनसूबा साजों का ताक़ुब किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि दहशतगर्दों को हर कीमत पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि हमारा दुश्मन भारत मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। भारत अपनी फौजी ताकत और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भारत अपनी फौजी ताकत और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बहाने बनाता है। In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their wreck was met with Pakistan's resolute response. Pakistan, despite grave provocations, acted with restraint and maturity, and demonstrated its commitment to regional peace and stability. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift, and a very befitting response. Let it be known to all inimical forces who harbor nefarious designs against Pakistan, we are ever ready in our resolve to defend our motherland at all costs. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. Our adversities have only made us emerge stronger. We will take our fight against terrorism to its logical conclusion and get rid of this menace in all its forms and manifestations, while the enemies of Pakistan continue unabated efforts to stall our destined rise. Our journey to glory continues. Pakistan is indeed on the path to progress and development with strategic consequences which can never be ignored. On such occasions, we can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive with perpetual danger of conflict in South Asia. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. वेलकम बैक। दरियाए सवात में सयाह बेरहम लहरों की नजर हो गए। एक और लाश मिल गई। डूबकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 11 हो गई। जाँ बहक होने वाले 9 अफराद का ताल्लुक डस्का और 2 का मर्दान से है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात 3 रोज में खत्म करने का हुक्म। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी के इजलास में तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला।
सानिहा सवात एक और लाश मिल गई। दरियाए सवात में लापता होने वाली एक और बच्ची की लाश मालाकंड से मिली। 8 साला बच्ची का ताल्लुक डस्का से है। डस्का से 3 खानदानों के 21 अफराद सवात तफरी के लिए गए थे। 11 अफराद होटल पर नाश्ता कर रहे थे, जबकि सेल्फियां बनाने के दौरान अचानक सैलाबी रेला आने से डूब गए। जाँ बहक होने वालों में 7 साला मोहम्मद अयान, 47 साला रुबीना, 18 साला अजवा, 21 साला तस्मीन, 17 साला शर्मीन, 15 साला आयमा, 18 साला मीरब, 13 साला मशाल शामिल है। इसका से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हर आंख अश्कबार थी। मर्दान के रिहायशी 2 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। एपी हुकूमत ने सानिहा सवात में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए फीकस 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुजात 3 रोज में खत्म करने का हुक्म दिया। सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी के इजलास में तमाम होटल्स मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला केपी ने गफलत बरतने पर डीसी सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक सानहे की तहकीकात में ये बात सामने आई कि PDMA ने पहले ही से बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी किया था। हुकूमती अहकामात पर जिला इंतजामिया ने दफा 144 भी नाफिज किया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। होटल मालिकान सियाहों ने हुकूमती अहकामात मुकम्मल नजरअंदाज किए। कई होटल मालिकान ने दरिया के किनारे सियाहों की बैठने की जगह बना ली। वज़ीर इत्तलात आता तारड़ कहते हैं कि कुदरती आफत के दौरान रिलीफ की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। सवात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पूरी कौम रंजीदा है। केपी हुकूमत की तवज्जो इंतशार पर है। अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है। सानिहा सवात पर DC के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में जाने की बजाय वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। पूरे मुल्क की टीवी स्क्रीन दिखाती रही कि वो किस तरह बिलक के अपनी जिंदगी बचाने के लिए चीखो पुकार कर रहे थे। तो 12 साल में आप रेस्क्यू सर्विसेज नहीं बना सके, आप इक्विपमेंट नहीं ले सके। वज़ीर आला कह रहा है कि खैमे देना, मैं वहां जाके बैठ जाऊं, मैं खैमे दूं, ये मेरा काम नहीं है। आपका काम है क्या? आप हमें आज क्लियरली बता दें। लोगों की जिंदगियां बचाना आपका काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आपका काम नहीं है। ये आपका काम है क्योंकि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करते हैं, वहां से जो अहकामात आते हैं बजा लाते हैं। डीसी को मुअत्तल करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने पूरे निजाम को मुअत्तल करें, एक डीसी के मुअत्तल करने से क्या होगा? मैं समझता हूं कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तरीके इंसाफ के निजाम की मौत हुई है कि वो बेचारे अपनी जिंदगी के लिए दुहाइयां देते रहे, मगर 8 घंटे गुजरने के बाद भी कोई उनकी रेस्क्यू को ना आया। आप कह दें कि हम ये आइंदा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से ये टैक्स नहीं लेंगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की और इमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज की मद में हम लेते हैं। हम ये काम नहीं करेंगे। अगर खैमे देना आपका काम नहीं है और लोगों को रेस्क्यू करना आपका काम नहीं, तो ये टैक्स मत लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सानिहा सवात का मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज किया जाए। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हों, वज़ीर आला केपी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। आप देखें जिस तरीके से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी, 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था, आपका PDMA कहाँ पर था, आपकी सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी। लिहाजा ये चीज़ें, हमारा सूबा बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हवाले हो चुका है जो इस सूबे को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो कि क्यों हमारे लोगों को और शहरियों को इस तरीके से मरने दिया। देखिए सबसे मजबूत इदारे जो हमारे हैं वो है बल्दियाती इदारे, उनको इन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिया। मुझे बताएं, ये NFC की बात तो करते हैं, तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन शहबाज शरीफ आकर करेगा। NFC अवार्ड मिलो, पैसे किधर हैं? पुलिस रो रही है, FC रो रही है, सामान है नहीं, तो पैसे कहाँ गए? पैसे आप मुझे बताएं। कोहिस्तान में 50 अरब रुपए का स्कैंडल आया है। मदीना की रियासत में हमने सुना था जो चोर और डाकू होता है उसको सजा दी जाती है।